Very good evening to all of you present over here. Am I audible to all? Am I loud and clear? Yes, ma'am. Okay. Welcome to the Toppers Talk session of IIT JAM conducted by Geodestination. Today we have Ishan Banerjee amongst us. Welcome, Ishan, to the talk, and many congratulations, first of all, for securing rank 15 in IIT JAM 2024. Many congratulations once again, and welcome. Thanks a lot, ma'am. Okay, so before starting the podcast, so basically, we'd like to know something about yourself, about your personal life, anything you would want to share, something about Uh, yourself. Good evening, ma'am, and good evening, all present here. I am Ishan Banerjee, and currently I'm in my sixth semester in Durgapur Government College. I have passed my class 12th also from Hemshila Model School, Durgapur, and my native place is Durgapur only. And I love to play football and watch football games. These are my hobbies, and that's all. Okay, so Ishan, you have secured rank 15, so it's a remarkable achievement. Did you expect this rank? आपने single rank expect करा था या double rank? कुछ expectation था below 50s या below 20s? टारगेट तो मैम था पहले से ही मतलब प्रिपरेशन से का शुरू से ही बट आफ्टर गिविंग द एग्जाम द क्वेश्चंस आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द एग्जाम हॉल आई वाज लिटिल बिट टेंस्ड कि Okay, एग्जाम कैसा गया। फिर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे कि दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, तो वो ठीक गए कि नहीं। तो पहला 2-3 दिन 4 दिन जब तक क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं हुआ और आंसर रिस्पॉन्स शीट भी रिलीज नहीं हुआ, तो वो थोड़ा टफ सी सिचुएशन था। फिर जैसे-जैसे नंबर कैलकुलेट किए जानते गए, तो एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा होगा, पर 15 वाज़ लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ओनली। okay, yeah, that's great. After you completed, okay, जब आपने exam hall से when you came out, ऐसे करते हैं ना बच्चे, they start to calculate their marks, मतलब discuss करना चालू कर देते हैं. So have you also done like that, immediate out of the hall? Yeah, I remembered some questions actually. So Okay. I actually discussed with my study partner. He is also from my neighboring college only. We had seat in the same college only. So we were discussing हाँ क्या इसका question क्या होगा, उसका question क्या होगा। एक तो सिली मिस्टेक था मेरा, उसका भी सेम सिली मिस्टेक था। तो Okay. वो भी डिस्कस किया हम लोग ने कि पर ज़्यादा क्वेश्चंस भी याद था, पर ऑप्शंस नहीं याद था उस टाइम समय। तो वी वर वेटिंग फॉर द लाइक आंसर्स, मतलब आंसर रिस्पॉन्स शीट एंड द क्वेश्चन पेपर ओनली। Okay. Okay, Ishan. Tell me, आपने ये जो rank secure करा, many students are there, those who can't get through the exam also. मतलब मेहनत equally करते हैं, but unfortunately they can't get through this. So आपने ऐसा क्या exclusive किया या फिर what is the extra amount of effort जो कि आपने डाला which gave you this rank? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट मतलब मोटिवेशन से भी ज़्यादा जो ज़्यादा ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी ओवर द 1 ईयर। एंड वो कंसिस्टेंट मैं था शायद इसलिए Okay. हुआ। और जब मतलब गलती से सीखना, मतलब मॉक्स दिए मैंने बहुत, फिर मॉक्स से सीखे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, फिर लाइक दैट ओनली। Okay, तो आपने बिल्कुल 1 year के लिए prepare किया था हाँ, consistently. हाँ, 1 ईयर के मैं कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया था। और फिर Okay, and this is the result, right? Okay, so now let's come to the preparation strategy. ठीक है, तो मतलब आपका जो बुक लिस्ट है थोड़ा सा डिटेल्स में आप बताएंगे अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड कौन से टॉपिक के लिए विच बुक्स यू हैड फॉलोड, प्लीज शेयर अमंगस्ट ऑल. okay, so for starting from the geomorphology part, I actually followed two books. That is, one is the GB Mahapatra Physical Geology book, and Savinder Singh, that is Physical Geography book. सविंदर सिंह का पूरा नहीं पढ़ना, मतलब टाइम नहीं होता लास्ट में। तो सविंदर सिंह का जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर दे हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ द जियोग्राफिक जियोमॉर्फिक फीचर्स नेम,
So that The should be index portion, right? yes. So everyone should read that, and in details, if they have to read that, then physical geology, GV Mahapatra is a very good book for that. Okay. And for mineralogy, I completely referred Barry Mason, mineral groups also. Mineral groups, crystallography, I referred William D. Nesse. And for the optical mineralogy part, one more book comes for Nesse only, that is only for optical mineralogy. For that book also, every chapter is not needed, only the first 7 chapters. Those are only needed for jam purpose. Then comes for sedimentology, I mainly preferred Sandbox, and especially for the sedimentary structures. If Hmm. someone refers to the Tucker book, then that would be very good. And for sedimentary environment, one can refer to Gary Nichols. It's a very good book. Okay. For metamorphic and igneous petrology, especially igneous textures. If anyone reads from J.D. Winter, that is far more than enough. J.D. Winter chapters, and for metamorphic, whole J.D. Winter, that from chapter 21. If someone reads, it will be more than enough. And then for engineering geology, I didn't refer to any specific book. I read that ADG general book, Amol Dasgupta General Geology, one book comes. That is enough. For for hydrogeology also, I referred mainly to the previous year questions. Applied geology, I mainly referred to the previous year geology questions. For economic geology also same. I refer to GV Mahapatra, that general geology book, because economic geology mainly question comes from the places, and I don't think any other book has so many variety of places that GV Mahapatra has. uh, so GV Mahapatra general geology book was pretty helpful for me. And for stratigraphy, I made self charts by reading Ramakrishnan, volume 1 and 2. And one more thing that I would like to add, that after reading if each subject, I used to read KM Bangar, GV Mahapatra, and ADG General once for that revision, because there are some important points written in GV Mahapatra that uh, one may skip in like bulk books only. Okay. So for revision, I would do that. ओके, सो ईशान, आपने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया. सो जाम में लाइक इज देयर एनी टॉपिक जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा वेटेज होता है, या फिर इट्स इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल जनरली? नहीं, एक्चुअली इफ यू सी द जैम क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2020-21 तक एक सर्टेन पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आता था, पर फ्रॉम 2022 इट्स नॉट द सेम केस एनीमोर. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसके बाद भी इफ समवन गोज फॉर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर होते हैं उसमें, एंड वन कैन गेट अ प्रिटी हैंडफुल. मतलब जियोलॉजी में बुक्स बहुत कम सारे हैं. उसमें भी अगर हम लोग चूज ही रहेंगे तो प्रिपरेशन और भी छोटा, मतलब बाउंड्री और भी छोटा ओके. होता जाता है. तो दैट इज प्रिटी, मतलब ओके, वो सो करना आप नहीं चाहिए था. ओके, सो यू मीन कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए? नहीं, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं, रिसोर्स एक होना चाहिए, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर गेट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा नेट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा. तब ओके. वो अच्छा रहता है. ओके. या. मतलब बुक अगर एक ही रहेंगे तो वो ठीक है, पर यस, स्टैंडर्ड बुक रखना चाहिए. हाँ, स्टैंडर्ड बुक एक ही ठीक है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए थोड़ा गेट का भी क्वेश्चन देख लेना चाहिए, थोड़ा नेट का भी क्वेश्चन देख लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स वही रहेंगे और घुमा फिरा के जैम में पूछे जाएंगे. Right. Okay, Ishan. So we all know that you have been a regular classroom student with Geo Destination. थोड़ा Yes. बताइए आपने कब ज्वाइन करा Geo Destination and how was your overall experience? I actually heard from Geo Destination from one of my seniors only. मैं शायद जून या जुलाई के टाइम में ज्वाइन किया था जियो डेस्टिनेशन, एंड मतलब
अमित शाह सर का जो स्ट्रक्चरल का क्लासेस होते थे, दे वर फेनोमेनल। लाइक बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके मैं कभी नाम भी नहीं सुना था और कंफ्यूजिंग भी है। सपोज स्ट्रक्चरल में सर फोल्ड बेंड फॉल्ट जो होता है, फिर प्रोपागेशन फोल्ड जो होता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता था पहले। पर सर जैसे पढ़ाते थे, सर जैसे क्लास में ही पढ़ाते थे, वो बहुत ही अच्छा था। फिर लास्ट में रेगुलर न्यूमेरिकल सेशंस भी होता था, रिवीजन क्लासेस भी होता था, दैट हेल्प्ड अ लॉट। एंड टेस्ट सीरीज भी बहुत ही अच्छा था जियो डेस्टिनेशन का। ओके, सो आपने न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया। सो जाम में न्यूमेरिकल्स, नॉट ओनली इन जाम, गेट एग्जाम ऑल्सो, न्यूमेरिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्वालिफाई, मतलब मेरिट में अच्छा रैंक लाने के लिए। थोड़ा सा बताइए न्यूमेरिकल्स के लिए आपका क्या एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी था? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स के लिए द मेन थिंग दैट आई डिड पहले ये कि 2015 से 2023 तक, मतलब रफ एंड अराउंड 9 इयर्स का जो भी क्वेश्चन पेपर था, 180 क्वेश्चंस, मैंने एक न्यूमेरिकल कॉपी में क्वेश्चन लिखा था और उसका सॉल्यूशन लिख लिया था। ओके। तो एक जगह पूरा कंपाइल होके रह गया। और एक जो है अभी मिनाल श्रेष्ठा का बुक न्यूमेरिकल्स के लिए, वो बहुत अच्छा है। पर उसमें भी सब कुछ टॉपिक्स नहीं करना होता है, तो उसमें भी थोड़ा जेन्युइन कुछ ही टॉपिक्स है। मतलब जियो फिजिक्स का जैसे टॉपिक्स तो हम लोग का नहीं है, पर वहाँ पर ग्रेविटेशन बोल के एक चैप्टर है, वो करना चाहिए, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन में एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आया था जैम में। फिर जैसे मिनरोलॉजी का, जैसे ऑप्टिकल मिनरोलॉजी का जैसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर सेडिमेंटोलॉजी का 2023 में एक आया था, रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रॉइड्स नंबर भी देके। तो वो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया। सैम बॉस का बुक था, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला दिए हुए थे वहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया। तो ऐसे ही, मतलब फॉर्मूला, जो जितना ज्यादा फॉर्मूला रिकलेक्ट कर सकता है उसके लिए उतना अच्छा। और लास्ट में देखेंगे कि बचा कुचा कुछ फॉर्मूला है जो एग्जाम हॉल में याद करके जाना जाए, मतलब जाएंगे, बाकी सब याद ही रहता है। तो ऐसे ही बस। अच्छा, सो आपने बताया कि 2015 से लेकर 23 तक, राइट? यस तो 2015 से 23 मतलब एग्जाम माइट हैव इवॉल्व्ड अ लॉट इन दैट, राइट? यस। तो 2015 में जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि पीवाई क्यूज हम अगर देखकर जाएंगे, तो हमें 24 के एग्जाम में इज इट एक्चुअली हेल्पफुल? लाइक पीपल टेल दैट नहीं, 10 साल का 9 साल। यस। एक्चुअली मैं जो स्ट्रेटेजी मतलब किया था वो है कि मैं पहले ही क्वेश्चन पेपर नहीं देखा था, ठीक है। आई ओके। वाज रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, फॉर लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल फॉर मेटामॉर्फिक। I have seen people starting directly from like faces, then diagrams, राइट। but I didn't do that. हम लोग का मिनरोलॉजी का जब मतलब कॉलेज में पेपर हुआ था, वो ऑनलाइन में था। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की मिनरोलॉजी के लिए। तो पहले मेरा एक मतलब सीनियर है, वो भी ऑल इंडिया रैंक 3 है 2019 का। तो वो भैया मेरे को बोले थे, शतुदल सिंह रॉय, वो भैया मेरे को बोले थे कि पहले अपना मिनरोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। मतलब ओलिविन ग्रुप ऑफ मिनरल्स ये क्या होता है, माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स क्या होता है, फिर एम्फिबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ये सब करके अगर पूरा ये अंडर ग्रिप आ जाता है, तब मेटामॉर्फिक बहुत इजी हो जाता है। और ओके। मेटामॉर्फिक से भी हम लोग वो प्लेट टेक्टोनिक्स कर सकते हैं, कोरिलेट करके। तो सब्जेक्ट में कोरिलेशन बहुत मतलब जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे मैं 4 ब्लॉक्स में मेरा पूरा जियोलॉजी मतलब कंपाइल किया था। पहले जो था स्ट्रक्चरल और इंजीनियरिंग, ये मैंने एक ब्लॉक रखा था। स्ट्रेटिग्राफी, पैलियोंटोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये एक ब्लॉक में था। और पेट्रोलॉजी और मिनरोलॉजी एक ब्लॉक में था, और बाकी जो प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह जो है वो और एक ब्लॉक में मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह। अब मैं एक एक ब्लॉक कंप्लीट करता था, और 2005 से 2023 तक पेपर वाइज मैं सॉल्व करता था। ओके। तो नॉट लाइक दैट मैंने सिर्फ ये टॉपिक पढ़ा, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, वैसे नहीं होता है। एक ब्लॉक अगर पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, दैट वुड बी मच हेल्पफुल आई गेस। और ओके। उससे सिलेबस कंप्लीशन भी अच्छा होता है। और फिर जैम का नहीं,
आप उससे गेट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन से अगर टॉपिक में जाएंगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए, अगर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ के क्वेश्चन में जाएंगे तो वो थोड़ा मतलब जैम का भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर गेट का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है। Okay, so okay, now you have told the strategy for the numericals. Next हमारा जो major portion होता है, major chunk of the exam, that's the MSQ, right? And वो आपका like थोड़ा सा confusing होता है since multiple answers are there. So आपने उसके लिए कैसे उसके tackle किया MSQ को? एमएसक्यू के लिए पहले तो मैं बहुत डरता था। मैं तो सोच ही लिया था कि 90 मार्क्स में मैं पेपर दूंगा, 80 मार्क्स में मैं पेपर दूंगा, 20 मार्क्स तो जाएंगे ही। पर टिल दिसंबर जनवरी तक आते आते एमएसक्यू इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर फुल नॉलेज ऑन जियोलॉजी। Okay, मतलब अगर कोई अप्रैल में से एमएसक्यू के बारे में सोच रहा है तो वो गलती कर रहा है। अच्छा, अब पूरा जियोलॉजी पढ़ना चाहिए पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एमएसक्यू अपने आप होगा। okay, मेरे साथ वही हुआ। मेरे को पहले एमएसक्यू एकदम ही नहीं आता था। 2015 का क्वेश्चन पेपर में लेके बैठा 16 लाता, मेरे को नहीं होता था। एमएसक्यू मतलब जितना बार एक टॉपिक आप रिवाइज कर लोगे उतना ज्यादा आपका एमएसक्यू का पोर्शन और भी ज्यादा अच्छा होता। फिर भी okay, मेरा तो एमएसक्यू इस बार उतना भी अच्छा नहीं गया एग्जाम में। कितना किया आपने? How much मेरा marks? मेरा 4 ही ठीक हुआ मैम। Okay, okay. ठीक है। सो एमएसक्यू के लिए आपका कहना है कि आपका मतलब पूरा रिवीजन करने के बाद बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रांग हो तभी आपका एमएसक्यू हो सकता है, पूरा राइट? फंडामेंटल स्ट्रांग हो और क्वेश्चन रीड करने का भी तरीका थोड़ा ओके, ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन का हर एक वर्ड जाता है कि क्वेश्चन के लिए। फिर एमएसक्यू में आप देखेंगे कि करेक्ट इनकरेक्ट वो भी रहता है कि वो एग्जाम हॉल प्रेशर में वो ठीक करना भी थोड़ा अ, या है। तो जो तीनों सेक्शन है एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट, उसमें से व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन? आपका सबसे मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पे आया था? मेरा एमसीक्यू में। एमसीक्यू में, राइट? तो Yes, ma'am. एमसीक्यू के लिए बस कोई और स्ट्रैटेजी है? नहीं, एमसीक्यू लाइक गिव्स यू आईआईटी एंड एमएसक्यू एंड नेट एनहांसेस योर रैंक, दैट्स इट। ओके, ओके, या मतलब एमएसक्यू और नेट अच्छा हो गया पर एमसीक्यू अच्छा नहीं हुआ तो नहीं, ये नहीं हो मतलब ओके, तब नहीं होगा। पर एमसीक्यू अगर स्ट्रांग है, बाकी नेट एमएसक्यू ठीक ठीक ठाक गया, फिर भी आईआईटी तो हो ही जाएगा। ओके। सो ईशान, लाइक आपने बताया कि सो डिड यू गिव मॉक टेस्ट? प्रैक्टिस के लिए आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया था एग्जाम के लिए? हाँ, मॉक टेस्ट लगा था। एक बुक आता है आईआईटी जैम ब्रेकर, नीरज चक्रवर्ती और रोहन नंदी का ओके। जैम ब्रेकर सीरीज। वहाँ हम्म, पर जो मॉक टेस्ट थे मैं वो प्रैक्टिस किया था। हम्म, एंड उसके बाद उसका पीछे में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो क्वेश्चंस था, मैं हम्म, उसको भी प्रैक्टिस करके गया था। तो ओके, दे वर वेरी हेल्पफुल, मतलब अंडरस्टैंडिंग योर फॉर योर कॉन्सेप्ट्स। नॉट लाइक दैट बहुत सारे लेते हैं कि मॉक टेस्ट लिए तो क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में। पर हम्म, दैट इज नॉट द केस। मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, तो वो ओके, टॉपिक को और एक बार पढ़ना चाहिए। राइट। तो ओके, दैट तो इज वेरी मॉक मच टेस्ट आपने कितने लगाए थे? डू यू रिमेम्बर कितने लगाए थे आपने मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले? एग्जाम के पहले मतलब मैंने मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज देने अक्टूबर से शुरू कर दिया था। ओके, हाँ। हाँ, पहले तो तो फुल लेंथ एकदम नहीं ही लेते? घटिया। हाँ, एकदम ही घटिया मार्क्स आता था पहले। ओके, फिर लास्ट फुल मॉक टेस्ट मैंने करीब 15 टू 20 लगाए थे। 15 to 20 एंड बाकी हाँ, सेक्शनल? सेक्शनल मॉक टेस्ट मिला के इफ समवन गिव्स 50 टू 55 और अराउंड 50 को मॉक टेस्ट, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अच्छा, तो मॉक्स में लाइक आपने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मतलब यही स्ट्रैटेजी मैं एक्चुअल एग्जाम में भी यूज करूंगा? लाइक जब एग्जाम के लिए 1-2 महीना बचा होगा, ऐसे कोई स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी? नहीं, एक्चुअली अब वो अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है। मैं एमसीक्यू पहले करता था, फिर नेट करता था, फिर लास्ट में एमएसक्यू करता था। ओके, दिस वाज माय स्ट्रेटेजी क्योंकि मेरा एमएसक्यू पहले से ही वीक था। चलो, ओके, तो ये था। और मॉक्स एकदम ऑनेस्टी से देना चाहिए, ये हम्म, एक बात है एकदम। क्योंकि यहाँ पर मॉक्स में नंबर देके तो कुछ मतलब नहीं कुछ होगा। फायदा आप नहीं इसका, हाँ, कुछ फायदा नहीं।
अल्टीमेटली तो एग्जाम हॉल में ही देना चाहिए। और मॉक्स में जो गलती किया था मैं एक सिर्फ एक ही कॉपी बनाया था कि मॉक्स में जो मैं गलती कर रहा हूँ उसको लिखने के लिए। ओके। मैं जो सही करता था वो क्वेश्चंस भी लिखता था, और कोई दूसरा पेन से मैं जो गलती किया था वो भी क्वेश्चंस लिख लेता था। तो अच्छा। इससे क्या फ़ायदा होता है, सिर्फ़ एग्ज़ाम के 1 वीक पहले क्या होता है, बहुत बर्नआउट फ़ील होता है कि मैंने बहुत ही पढ़ लिया, अब नया कुछ पढ़ूँगा तो याद नहीं रहेगा। तो राइट। एग्ज़ाम से 1 वीक पहले सिर्फ़ मैंने वो जो गलती किया था लास्ट 6-7 मंथ्स में, सिर्फ़ वही वही देख के चला गया था एग्ज़ाम पेपर में। तो अच्छा, तो दैट मॉक्स हेल्प्स। में आपने ऐसे कुछ लाइक स्ट्रैटेजी अपनाया था कि मुझे इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है? ऐसे करते हैं ना बच्चे कि लाइक आई सॉल्व दिस मच क्वेश्चंस एंड देन उस हिसाब से मुझे मार्क आता है। ऐसे हाँ, कुछ किया था आपने? हाँ, देखिए मॉक्स में एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव जो हुँ, अगर है पेपर में, तो हुँ, माइनस मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे 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 रहेंगे कि आपको छोड़ना ही है वो क्वेश्चंस। राइट। मतलब वो अगर लक से लग गया तो ठीक है, नहीं तो गलती होगा। हुँ, तो जैसे मेरा ही इस बार एक क्वेश्चन आया था, मैंने वो मतलब देखा कि क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं वो पूरा से, वो बी ओके, न्यूट्रॉन करके कुछ क्वेश्चन आया था। अच्छा, बीटा न्यूट्रॉन करके, तो वो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया। तो अच्छा, वो होता है कि कौन-सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन-सा क्वेश्चन नहीं, उसके हिसाब से भी मार्क्स देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो अगर सब क्वेश्चन करने गए तो उसका भी आइडिया लग जाता है मॉक से? कौन सा हाँ, हाँ, क्वेश्चन? हाँ, हाँ, ओके, बहुत आइडिया बहुत लग जाता है। ओके, उससे भी ठीक है। ज़्यादा। सो तो आपने बहुत अच्छे से इलैबोरेटली डिस्कस करा यस मैम, स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग। सो यस मैम। नाउ आपने जो बताया कि एग्जाम में जो वो जो 3 घंटे हैं वही मैटर करते हैं, राइट? उसमें लाइक बहुत ही प्रेशर फील होता है, तो आपने वो जो एंजाइटी के साथ कैसे डील किया था एग्जाम हॉल में ही इन दैट 3 आवर्स? एग्ज़ाम हॉल में तो पहले जो 1 घंटा बैठ बैठ के रहना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो मैंने अ, मतलब अगर वो उस टाइम में जो जितना चिल रहेगा, उसके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है फिर एक एक जो चीज़ होता है मॉक्स और मेन एग्ज़ाम में फ़र्क वो है, मॉक्स मेरा 1 डेढ़ घंटा में खत्म हो जाता था। अच्छा। ठीक है। 1 डेढ़ घंटा हार्डली लगता था कि मॉक्स मेरा खत्म हो जाता है। एग्ज़ाम में 3 घंटा कैसे निकल जाता है वो किसी को नहीं पता चलता है। हम्म। तो वो एग्ज़ाम मॉक्स में भी वो मतलब डेढ़ घंटा में खत्म हो गया तो मैं उठ गया, वो नहीं करना चाहिए। 2 और ओके। ढाई घंटे के बाद क्वेश्चन है मेरे पास, पता है मेरे को क्वेश्चन, पर मेरे को क्वेश्चन बार-बार रीड करना है कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। और रिविज़न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्वेश्चन देखा, पर फिर वो भी रहता है कि क्वेश्चन शफ़ल करके आते हैं। हम्म। मतलब पहले ही हार्ड क्वेश्चन्स आ गए किसी के पास तो वो नर्वस हो जाता है, फिर बाद में ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आस्ते-आस्ते ग्रो करता है। तो हम्म। मार्क्स देखते-देते मेरा वो थोड़ा हैबिट में आ गया था। तो एग्ज़ाम में प्रेशर 2 घंटे के बाद थोड़ा प्रेशर फ़ील होने लगा, ओके। क्योंकि मेरा एमएसक्यू में थोड़ा अटक गया था मैं। अच्छा। फिर जब नेट आया फिर एमसीक्यू रिवाइज़ किया तो फाइनली इट वाज़ फाइन। ओके, तो आपने मॉक्स में बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम वाला सेटिंग आपने प्रैक्टिस करा था मॉक्स हाँ, में हाँ, भी? हाँ। हाँ, हाँ। ओके। ओके। ओके, सो ईशान लाइक अगर आपके लिए एग्जाम के लिए 1-2 महीने बचे होंगे, ठीक है? तो उसमें हमें कैसे लाइक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी जिसे बोलते हैं, तो वो हमें कैसे करनी चाहिए? लास्ट में स्ट्रैटेजी मैम, जितना मैं अभी तक पढ़ा हूँ, तो आई विल फोकस ऑन दोज़ टॉपिक्स ओनली। मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ने जाओ तो जो रिवीजन इज़ द की, मतलब सिर्फ़ पढ़ लिया मैंने, 1 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ा, फिर मैंने 1 महीने बाद वो रिवाइज़ नहीं किया, तो दैट इज़ मतलब एग्ज़ाम हॉल प्रेशर में वो भूल ही जाऊँगा मैं। हुँ, तो 1 डेढ़ महीना जो भी मैं अभी तक पढ़ा हूँ, उसको ही रिवाइज़ करते फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके यही जाना ठीक है, तो मेरे आपने हिसाब लाइक से। एक-एक बुक को आपने कितनी बार रिवाइज़ करा था रफली? ये मैम मतलब अ, अगर पैडी मेसन को मैं बहुत सारे बार रिवाइज़ किया हूँ, प्राय ओके, करीब 15-16 बार।
अच्छा। हाँ, फिर सैम बॉस को भी सेम। और मैं ऐसे नहीं कि मिनरोलॉजी आज रिवाइज किया फिर मतलब 2.5 महीने बाद रिवाइज किया। मेरा सब मतलब लास्ट 2 महीना मेरा सब सब्जेक्ट एक साथ ही चलता था। मैं अच्छा। सुबह मिनरोलॉजी थोड़ा रिवाइज किया तो शाम में थोड़ा सेडिमेंटोलॉजी रिवाइज किया तो रात में थोड़ा स्टैटिग्राफी हर रोज पढ़ना चाहिए। स्ट्रैटिग्राफी और इकोनॉमिक को कोरिलेट करके। और हम्म। बाकी सेडिमेंटोलॉजी हो कि इग्नियस सिस्टम्स हो फिर टेक्सचर्स हो, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मतलब वो थोड़ा मैं रिवाइज करता था। ओके, तो आपका जो रिवीजन का शेड्यूल था, वाज इट शॉर्ट टर्म लाइक वीकली शेड्यूल था या मंथली था, कि एक महीने के बाद मैं इसे फिर से रिवाइज करूंगा, या वीकली था एवरी संडे टू संडे में रिवाइज करूंगा ऐसे? मैम थर्ड सेमेस्टर तक तो सब मतलब न्यू थे। मतलब सेडिमेंटोलॉजी भी पहले पढ़ा हूँ फिर इग्नियस भी फर्स्ट टाइम पढ़ा फिर पैलिएंटोलॉजी भी फर्स्ट टाइम पढ़ा। फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर जब मेटा शुरू हुआ तो मेटा शुरू करने से पहले मैंने मिनरोलॉजी रिवाइज किया। ओके। फिर जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा फिर मैंने मेटा रिवाइज किया। फिर मेटा के साथ साथ थोड़ा सेडी भी रिवाइज किया। स्ट्रैटिग्राफी के साथ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा। फिर थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर का क्रिस्टलोग्राफी भी थोड़ा रिवाइज करता था एट टाइम 32 क्रिस्टल क्लासेस जो है। तो ऐसे मतलब मेरा मेरा थोड़ा हैप्पैज़ार्ड शेड्यूल चलता था। मतलब ऐसा ओके। कुछ नहीं कि 2 महीने 2 वीक बाद कि 3 वीक बाद। जितना हैप्पैज़ार्ड मतलब कर लूंगा उतना अच्छा होता है। क्योंकि क्वेश्चन में तो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम हॉल में। तो हम्म। रैंडम जितना रैंडमली मैं याद रख लूंगा उतना अच्छा ओके। होता है। अच्छा। तो आपने जैसे बताया आपका हैप्पैज़ार्ड शेड्यूल चल रहा था, राइट? तो हाँ ऐसे हाँ। कुछ मतलब दिन में कुछ घंटे फिक्स थे कि आप मैं इतने आज लाइक विल आई रीड फॉर 6 to 7 आवर्स, या वो भी रैंडम ही थे? अ, हाँ, वो भी रैंडम ही थे पर मेरा एक था मेरा कोई डे स्किप मतलब हार्डली कोई डे स्किप जाता था। अच्छा। मतलब ऐसा दिन होता है कि कुछ पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो राइट। उसमें भी मैं थोड़ा जब पढ़ाई करने का मन नहीं होता था मेरा वो 18 इयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, वो मैं प्रिंट आउट करके रख दिया था घर में ही। तो तब ऐसे ही लेट के वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा मतलब उल्टा मतलब थोड़ा अच्छा। देख रहा हूँ पेपर्स क्या-क्या आए थे, क्या-क्या नहीं। तो मतलब शेड्यूल कंटीन्यूअस था मतलब डे स्किप नहीं होता। कंसिस्टेंसी था। क्योंकि अगर 2-3 दिन, 4 दिन डे स्किप हो जाता है ना, फिर बैक टू द शेड्यूल आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। अ, फिर और 1 वीक लग जाता है बैक टू द शेड्यूल आने में, तो वो राइट। थोड़ा है। हाँ। यस, तो आपका जो मतलब ओके, आप 18 इयर्स के पेपर के थ्रू मतलब यू आर गोइंग थ्रू दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर रिक्रिएशन एक्टिविटीज आपका था, मतलब थोड़ा सा माइंड मेडिटेशन वगैरह आप कुछ करते थे? मेडिटेशन तो नहीं, थोड़ा मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अच्छा। तो ओके। वो फुटबॉल मैं खेलता था। मैं मतलब हम लोग का कॉलोनी में ही। और मेरा अच्छा। थोड़ा वीडियो गेम्स मतलब घर में भी मैं थोड़ा रात को 11-12 बजे फुटबॉल भी खेलता हूँ। हम लोग का एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, स्कूल का ही। ओके। तो उन लोग के साथ वही रिक्रिएशन। अच्छा। Okay, so now if anyone wants to ask any question to ईशान, you can definitely ask. आप लोग chat box में question पूछ सकते हो, कोई question आपके मन में है. So we'll take questions now from the aspirants. So please ask, जो भी आपके doubts हैं, you can ask now. Any questions anyone is having? Either आप unmute करके पूछ सकते हो, otherwise. Okay, how to make mineralogy concept stronger? Preetam is asking. सो बेसिकली मिनरोलॉजी के आपका 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं। एक क्रिस्टलोग्राफी है, एक ऑप्टिकल मिनरोलॉजी है और एक फिजिकल मिनरोलॉजी प्लस फिजिकल, केमिकल और जो मिनरल ग्रुप्स हैं। Hmm. तो इस 3 को अलग करके आपको पढ़ना है। फर्स्ट जो है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में जो है 32 क्रिस्टल क्लास के पूरा एकदम रट्टा नहीं मारना है। अच्छा। रट्टा मार लेंगे तो भूल जाएँगे। रट्टा मारने का वो भी एक और एक तरीका है, पर अगर रट्टा मारेंगे तो पहले ही रट्टा मारने का मतलब ओर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा वो स्टेडियोग्राफिक जो प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको समझिए तो क्रिस्टलोग्राफी वैसे हो जाता है। और एक प्रॉब्लम जो होता है मेरे साथ तो बहुत हुआ है वो कि एक मतलब क्लास का कितना मतलब
सपोज 422 उसका नाम क्या होगा, नाम याद रखने में बहुत है, तो वो नाम अगर एक बार मतलब लिख के प्रैक्टिस करने से वो हो जाता है। फिर मिनरोलॉजी का जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स आई रेड फ्रॉम बैरी मेसन, तो बैरी मेसन से मैं मिनरोलॉजी ग्रुप्स पूरा पढ़ा था। मतलब फर्स्ट जनरल फार्मूला, फिर क्या-क्या मतलब एंड मेंबर्स, एफई का एंड मेंबर क्या होगा, एमजी का एंड मेंबर क्या होगा, फिर एफई एमजी कंटेंट जब ज़्यादा होगा, एफई कंटेंट जब ज़्यादा होगा। तो वैसे मैं कवर किया था मिनरोलॉजी ग्रुप से। और फिजिकल मिनरोलॉजी और मतलब केमिस्ट्री ऑफ मिनरल्स जो है एक चैप्टर करके बैरी मेसन में, वहाँ से मैं पूरा पढ़ा था, मतलब केमिस्ट्री ऑफ मिनरल्स, तो वो बहुत हेल्प किया था मेरे को ऐसे ओके करके। और मिनरोलॉजी हर एक मतलब पेट्रोलॉजी अगर स्ट्रांग बनाना है तो मिनरोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि वो जो मेटामॉर्फिक का जो है, फिर मेरा हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में इग्नियस था, अच्छा तो इग्नियस का भी पहले थोड़ा मेरे को तो आइडिया मतलब पहले आइडिया नहीं होता था कि एल्बाइट क्या होता है, नॉर्थाइट क्या होता है, उनका फिर से सॉलिड सॉल्यूशन, फिर मैंने पढ़ा तो वैसे ही हो जाता है। मतलब पेट्रोलॉजी स्ट्रांग बनाना है तो मिनरोलॉजी स्ट्रांग होना ही है, मतलब एकदम जरूरी है। okay okay so next question we have from भारती, ओशेनोग्राफी कहाँ से कवर करें ओशेनोग्राफी के लिए? ओशेनोग्राफी तो ऐसे ओशेनोग्राफी बोल के तो कोई टॉपिक नहीं है जैम में। फिर हम्म, भी अगर वो जियोमॉर्फिकल फीचर्स ऑफ ओशंस करके एक चैप्टर आता है फिजिकल जियोलॉजी, जीबी महापात्र जी सर का बुक से, तो वो पढ़ सकते हैं। और सविंदर सिंह का फिजिकल जियोग्राफी बुक से भी वो कवर हो सकता है। ओके तो ओशेनोग्राफी बोल के कोई टॉपिक नहीं है, पर मतलब जियोमॉर्फिकल एक्शंस ऑफ ओशंस जो है उससे कवर हो सकता है। हाँ ये टॉपिक CSIR नेट में मोस्टली आता है, सो हाँ इट्स हाँ। नॉट इन जैम या ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम अंजलि, हाउ टू स्टार्ट स्ट्रैटिग्राफी? तो स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलियो थोड़ा सा बोरिंग लगता है यूजुअली एस्पिरेंट्स को, तो कैसे उसे स्टार्ट करना है? एंड आपको बोरिंग लग रहा था क्या वो, लाइक यू हाँ, वर? मेरा दोनों ही वीक टॉपिक था, पैलियोंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी। तो स्ट्रैटिग्राफी मैंने जो किया वो मैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो होता है, तो हम्म पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मैंने बहुत सारा खरीदे थे। मतलब प्राय 50-60 पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया खरीदे थे मैंने। फिर जो बेसिन्स क्लास में पढ़ाए जाते थे, वो बेसिन्स को मैं मतलब कहाँ-कहाँ है, मतलब धारवाड़ सब वो साउथ इंडिया में है, कडप्पा साउथ इंडिया में, तो मैं वो मार्क करता था पहले, कि मेरे को आइडिया लग जाए कि जो नाम मैं सुन रहा हूँ वो कहाँ है। कच्छ गुजरात में है, हम्म फिर बंगाल बेसिन, फिर हाँ तो मतलब सिंहभूम है झारखंड जोग्राफिकल में। लोकेशन थोड़ा सा उसे पता ज्योग्राफी का, हो। हाँ, पहले हाँ ज्योग्राफी का लोकेशन पता होना चाहिए, फिर पहले क्रेटॉन्स, फिर बेसिन्स, ऐसे करके तो जब शुरू कर लेंगे तो फ्लो में आ जाएंगे। पर अच्छा स्टार्टिंग में जो नाम सुन रहे हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टैटिग्राफी, स्टैटिग्राफी में पढ़ाई होती कैसी है, तो हम्म उसलिए मैंने पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया खरीदा था। फिर उससे और स्टैटिग्राफी अगर अच्छा हुआ तो इकोनॉमिक जियोलॉजी ऐसे ही हो जाएगा। मतलब उससे उसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ इकोनॉमिक जियोलॉजी का जो ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस सिर्फ़ पढ़ना पड़ता है। बाकी ऐसे ही मतलब अ, अगर आइडिया हो जाए कि नाम कहाँ-कहाँ से है, तो यहाँ पर गोल्ड मिलता है, यहाँ पर सिल्वर मिलता है, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, ऐसा हो ओके तो आपने जो टॉपिक्स के लिए आप नोट्स बनाना प्रेफर करते थे रिवीजन पर्पस हाँ, के लिए मोस्टली, या हाँ, हाँ, फिर हाँ। बुक से ही पढ़ना? ना, मैं मेरा सेल्फ नोट्स था। मेरा ओके अपना सेल्फ नोट्स नोट्स था। राइट मेरा ओके अपना नोट्स था। और मैं वो भी नोट्स थोड़ा दिन बाद, मतलब जब मैंने लास्ट टाइम रिवीजन शुरू किया, तो मैंने एक ही मोटा कॉपी लिया और उसमें पूरा जियोलॉजी लिख डाला, अच्छा कि एकदम पहले से, मतलब एकदम क्रिस्टलोग्राफी से शुरू होकर पूरा एकदम कोल पेट्रोलियम तक। अच्छा छोटा-छोटा सब करके सब नोट्स में फिर ये लिखता, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट 2 वीक्स क्या 3 वीक्स क्या 1 मंथ में क्या होता है, सब मतलब ढूँढने रह जाऊँगा कि मेरा सेडी कहाँ है, मेरा सेडी का वो कहाँ है, मेरा इग्नियस कहाँ है। तो इसलिए मैंने वो 2 मंथ्स पहले ही शुरू कर दिया था कि पूरा एकदम जियोलॉजी, और उसमें भी डिवीज़न होता था। हम्म
Okay. So Ravi is asking, sir, how to memorize things of paleontology and stratigraphy? वही memorization. मेमोराइजेशन तो मेरा भी थोड़ा वीक था पैलियोंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी में। अगर आपको मतलब कॉलेज का भी कोई दोस्त होगा ही कि आप एक साथ पढ़ाई कर ही सकते हो, तो उसको उसके साथ ही कि थोड़ा निमोनिक्स याद करके भी हो सकता है, ये थोड़ा अच्छा. हेल्प करता था। मतलब स्ट्रैटिग्राफी सक्सेशन स्पेशली, और पैलियोंटोलॉजी में भी पैलियोंटोलॉजी में अगर वो अमोल दास गुप्ता सर का जो बुक है पैलियोंटोलॉजी, सिर्फ वो अगर डायग्राम्स देख लेते हैं तो वो बहुत अच्छा हेल्प होता है। अच्छा. डायग्राम्स देख देख के मतलब सिर्फ एक ही बाइबल का ड्रॉ किया, उसमें कहाँ एडक्टर मसल है, कहाँ पोस्टीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर है, कौन सा इंटीरियर है, डोर्सल साइड व्यू एंड फिर वेंट्रल साइड अम्बो कहाँ है, तो वो अगर थोड़ा डायग्राम हो जाता है तो। और पैलियोंटोलॉजी में मैंने सिर्फ मतलब वही टॉपिक्स पढ़े जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते थे। अच्छा. मतलब बाइबल्स का जैसे डेंटिशन, सेफालोपोड का बाइबल का डेंटिशन, सेफालोपोड का सूचर्स, गैस्ट्रोपोड का ऐसे ही मॉर्फोलॉजी, ऐसे ही ट्राइलोबाइट का आईज। तो ऐसे ही कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जिससे पैलियोंटोलॉजी का क्वेश्चंस आता है। नहीं तो उतना स्पीशीज का नाम याद रखना भी थोड़ा टफ ही Right. होता है Okay. पैलियोंटोलॉजी। Okay. So next question we have from Anjali. Which book should we refer for the practice of NAT numericals के लिए कौन सा book है refer करना चाहिए? मृणाल श्रेष्ठ, न्यूमेरिकल्स फॉर गेट एंड जैम एक आता है, मृणाल श्रेष्ठ का बुक। Okay. Okay. Any other questions? Anything related to JAM? Please ask questions related to JAM preparation. Okay. Ravi is asking. कभी कभी बहुत डर लगता है, डर भी लगता है. So what to do? Preparation के time में. हाँ, वो तो होता है, थोड़ा सेल्फ डाउट भी होता है कि होगा कि नहीं होगा, पर वो पार्ट ऑफ अ जर्नी है, तो बाद में जाके वही याद आएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, दैट्स इट। Yes. होने के बाद वही याद आएगा फिर. Okay. So how much time should we spend for doing numericals per day? आई गेस हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इज मोर देन इनफ। Okay. तो आपका जो प्रैक्टिसिंग yes, please continue. हाँ, बोलिए. practicing 5 to 6 numericals per day from, if someone starts from now also, it's more than enough. अच्छा. तो आपका न्यूमेरिकल जैसे कि होता है कि मतलब जियोलॉजी स्टूडेंट्स में थोड़ा सा दे वीक इन न्यूमेरिकल्स ऐसे अजम्पशन होता है. तो आपका न्यूमेरिकल पहले से स्ट्रांग था या यू हैड टू ब्रश अप? नहीं, आई हैड टू ब्रश अप माय कॉन्सेप्ट्स, और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी किया क्योंकि थोड़ा 2019 में जैसे बोले कि थोड़ा ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ गया था। 2022 में थोड़ा फिजिक्स का वो ब्लॉक डायग्राम आ गया था, तो अपार्ट फ्रॉम जियोलॉजी कोई अगर वो फिजिक्स का थोड़ा डायग्राम देख ले, एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, कोई ज्यादा रोटेशनल मैकेनिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वो ऐसा कुछ नहीं, एकदम एफ इक्वल्स टू एम जी, ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री का थोड़ा काइनेटिक्स, फिर थर्मोडायनामिक्स का जो पार्ट आता है, वो थोड़ा अगर देख के जाए, सिर्फ फॉर्मूला, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अगर देखे जाए तो वो भी अच्छा है। मतलब याद रहता है, पर एग्जाम हॉल में थोड़ा अलग प्रेशर का होता है, तो उसमें अगर याद रहेगा तो अच्छा है वो वाला। राइट. क्योंकि 2022 में भी शायद एक ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन आया था। तो अ, यही जस्ट। Okay, so next question we have from Ravi. Since you are already you are मतलब आपके कॉलेज अभी चल रहा है, so how to manage college, class, semester exam and self study? सारी चीजों को एक साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है? अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब कॉलेज का पढ़ाई और मतलब जैम का पढ़ाई कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अच्छा. तो मेरे को वैसे अलग से कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ जैम के, मतलब कॉलेज या जैम, क्योंकि मतलब जियोलॉजी तो मतलब मेटामॉर्फिक अगर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट कॉलेज में पढ़ेंगे,
और फर्स्ट टाइम ही वो पढ़ रहे हैं ना, तो वो तो जैम में हेल्प हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो अलग से जैम का लिए प्रेशर करते, अलग से अगर 30 मिनट्स अ डे अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो न्यूमेरिकल्स आपने कब से करना शुरू किया, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या 2 to 3 months जैसे तक? जैसे जैसे मतलब टॉपिक्स मेरे खत्म होते गए, ओके, तो वैसे वैसे मैंने न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दिया था। ओके। और बाई अगस्त और सितंबर मैंने वो पूरा 2015 टू 23 का जितना सारा न्यूमेरिकल्स आया था वो मैंने एक जगह कर लिया, तो वो थोड़ा हेल्प किया। ओके, ओके। सो एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को और कुछ क्वेश्चंस पूछना है, यू कैन आस्क। How to read? Preetham is asking how to read J.D. Winter properly and what to skip in it, what not to read. जेडी विंटर पहले तो पूरा चैप्टर एक बार रीडिंग कर लेना चाहिए, और फिर वो समरी का जो पोर्शन रहता है, जेडी विंटर का भी है, ओके एक है, तो समरी का जैसे मेटामॉर्फिक टेक्सचर अगर हम लोग देखते हैं, तो मेटामॉर्फिक टेक्सचर में मैंने क्या किया था, पूरा एक बार रीडिंग कर लिया था पूरा बुक एक बार, फिर मैंने वो समरी पॉइंट्स जो जो दिए हुए थे उसको फिर एक बार जाके मैंने रीड किया। तो जेडी विंटर ऐसे तो कर जेडी सकते हैं। विंटर आपने पूरा कवर किया था या कुछ टॉपिक्स आपने स्किप किया था उसमें से? नहीं नहीं, पूरा तो पॉसिबल नहीं है मैम। इग्नियस में मैं क्लासिफिकेशन जेडी विंटर से किया था। ओके, क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा दिया है जेडी विंटर में, और इग्नियस टेक्सचर जेडी विंटर से मैं पढ़ा था, ओके। और मेटामॉर्फिक टेक्सचर्स भी मैं जेडी विंटर, मेटामॉर्फिक फेसिस, और फिर जो पेलिटिक का डायग्राम्स होता है, AFM ACF डायग्राम सब जो होता है सब, वो भी मैं जेडी विंटर से किया था। Okay. So Subhranshu is asking, what should we do to refresh our brain after studying? तो जो power naps होते हैं, I think the breaks in between हाँ, study. थोड़ा मतलब कोई टीवी देख सकता है, कोई गेम खेल ले सकता है, कोई गाना सुन सकता है, वो इंडिविजुअल। तो मैं थोड़ा गेम खेल लेता था, मतलब 15-20 मिनट्स का एक ब्रेक लेता था, तो उसमें एक गेम खेल लेता था, तो अच्छा, फिर से बैक टू स्टडी। okay. So Ashutosh is asking how to read books, like chapter wise या important topics उसमें से पढ़ना होता है? मतलब चैप्टर वाइज वो तो थोड़ा मतलब जैसे मैंने कहा कि बैडिमेशन मिनरलोजी का, तो केमिस्ट्री ऑफ मिनरल्स बोल के जो चैप्टर है उसमें सब भी कुछ पढ़ना होता है। फिर ग्रुप्स में थोड़ा मतलब वो मतलब पढ़ते पढ़ते हो जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है। वो जितना रीडिंग हैबिट इनकलकेट होगा उतना ज़्यादा एडॉप्ट हो जाएगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये इसको छोड़ भी सकते हैं। Yes, फिर तो आपको अगर समझ में आ कुछ, जाएगा। हाँ, वो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद जो क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर से बैक टू बुक, और फिर जो जो टॉपिक्स मिस गए थे, अगर उससे कुछ क्वेश्चंस आ गए होंगे तो उसको फिर से नोट्स में ऐड करना होता है। Okay. Okay, any other questions? Any other questions? Okay, so all of them are wishing you congratulations. So many थैंक्स अ लॉट congratulations मैम, from our थैंक्स अ side also. Okay. Okay. Did you follow any timetable? टाइम टेबल मतलब ऐसे तो फिक्स्ड कोई टाइम टेबल नहीं था, पर मैंने मतलब आई यूज्ड टू मतलब वेक अप लेट इन द मॉर्निंग ओनली, और मैं रात को ही मैक्सिमम पढ़ता था। Okay. Okay, so thank you so much, Ishan, for joining with थैंक us यू। today. And okay, so Ravi is also wishing you. आप IIT Bombay जा रहे हो, okay? So yes, all the best for that also. यस मैम, थैंक यू। Okay, and many आपकी जो फ्यूचर एंडेवर्स है, गेट एग्जाम या फिर जो भी आप परस्यू करना चाहो उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक एंड यू थैंक मैम, ऑल थैंक द यू, एस्पिरेंट्स आल्सो। थैंक यू मैम।